Yeah, hi guys, good morning. Good morning, sir. Where are your other, where are your other friends? Can you message a Prabal? Somebody? Yes, yes, please. Okay, okay, sir. Let me test also. Okay, guys. No, no. Are you getting my voice? All of you? Okay. So, not to waste so much time. Let's start. Okay. So, guys, uh, today we'll start the actual syllabus. I will go on through the overall syllabus. Okay, and I will tell you what are the different programming languages are there. Okay, then today we'll see. We have already seen some points. Okay, yesterday still we are repeating that one. Okay, let me share the screen and we'll explain you. Are you getting my screen? Okay, so now you can check. I open your syllabus. Are you getting syllabus? Yes, please. Yes, sir. Okay, so the first part that I've been selected, this is the introduction part only. Okay, and your actual concept is start from this line. Okay, so let me start with this introduction. Okay, guys, have you know about different programming languages? Yesterday we have seen C language, right? C language. Okay, so the C language comes under a procedural oriented programming. Let me show you how it is a procedural oriented programming. C is a what? POP language. POP का लॉन्ग फॉर्म क्या होगा? Yes, procedural oriented programming. Okay, OOP का क्या लॉन्ग फॉर्म होगा? Yes, somebody tell. Object oriented programming language. ठीक है? The another language is what? OBP. That is object. Do you know what is a BP? Object based. Yes, programming language. Next one, the generic programming language. Okay, so there are different programming languages are there. Okay, nowadays in the world, the most concept widely used is what? Object oriented programming language. Okay, here in object oriented programming, most of language, 90% language are covered. So we can say C++, we are having a Java. Okay, also we can have a Python. Okay, then a .NET also. We can say .NET.
ASP.NET or C#.NET, okay, then shell scripting, anything, matlab 90% objects are there, okay, okay. Now this content may be a Cobalt not been used, okay, and the generic program is called a template programming. What it is called? Template programming, okay. So this generic we can use in a C++ also and C also, okay. So I will tell you the difference between, okay, these three: C++, OBP, and generic programming language will keep apart, because this generic programming language, where it is, this generic programming language, you are having a separate unit. See, this is a generic programming language. Why it is called generic programming language? I will tell you at the time of this unit. Are you getting, guys, what I am trying to say? Yes, please. Okay, so let's start with the C program language. Okay, yesterday we have seen what is the example of the C program language, right, guys? What is the example of the C program language? Suppose I have taken this one. These two lines I have taken for here. Okay, now instead of fun1, why I have to call fun2? Okay, here I have to pass integer a comma integer, sorry, b, and here you have to pass what? A comma b. Okay, now see, guys, the procedure means what? They have given some rules. Okay, that rules I have to be followed. Okay, if you are not going to be following the rule, no issue of the execution, but okay, the approach is going to be a fence. Approach means what? जैसे उन्होंने दिया गया है कि आपको इसी रास्ते से जाना है, तो आपको क्या करना है? उसी रास्ते से जाना पड़ेगा. तो क्या होता है, देखो, while you go with your bike and you are traveling in the one way, okay, in the opposite direction. So what will happen? Okay, you can have a fine, okay, by the traffic police. So something will be happen, that may be a, okay, missed use of the variables. Okay, it may get crush your system also, it may get crush your application also. Okay, so try to always write a recommended code which is given by the, okay, developer or inventor, right, guys? Are you getting what I'm trying to say? The procedure means what? In the procedure we have to strictly follow a procedure. If you are not following the procedure, okay, what is going to be happening? If you are not following the procedure, okay, your output will not be shown as per your expectation. Okay, suppose मुझे चाहिए output 10 plus 10, okay, what is output? 20. Okay, so ऐसा भी हो सकता है, अगर आपने 10 plus 20 लिखा, output 30 चाहिए और वहां कुछ तो garbage value आ रहा है, ऐसा कुछ तो garbage value आ रहा है. Okay, so this is not your expectation, right, guys? Are you getting or not? What is your expectation? Instead of this garbage value, what I required over here? 30. And what you are getting? Yes, please. What you are getting instead? Garbage value, right, guys? This sum like garbage value will getting. So what is your expectation? Is 30. Always try to make your answer should be correct. Okay, so these are the silly mistakes which may be, okay, occurred by the developer also. Okay, so the procedure means what? Simple thing. While we are declaring any function, any variable, okay, or any class, suppose I am using integer main. Okay, अगर देखो मुझे, मैंने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर a कॉमा b, ठीक है, और मैंने कुछ तो 4-5 लाइन लिखे हैं. Okay, these are the simple lines. And what is happening over there at the line? What is the line number? This is the first, second, third, fourth, fifth, and sixth. At the line number 7, again I want to use another variable. Suppose मुझे ऐसा लगता है बाबा कि मुझे यहाँ क्या करना है, एक वेरिएबल c यूज करना है, ठीक है. तो वेरिएबल c तो इस लाइन में किधर डिक्लेयर किया है क्या? Yes, please. No, na. So this first 5 lines there will be no declaration of c. So obviously it will give an error. Yes, undefined c. Yes or no? So what we need to do? Okay, before using the C, we have to declare the C. Okay, so this is not allowed in a C language. Anywhere you can't declare. Okay, so this is a specific procedure. At the first line where you are declaring the variable, you should declare all the variables which you require. Are you getting or not, guys? What I'm trying to say?
This is a procedure. If you are not following this procedure, you may get some confusion in output. Okay, ambiguity also you can say. Suppose again I am writing suppose some 5 lines. Okay, 5 lines or 10 lines, and at this line I want to use a variable d. This variable I want to use. So where I can declare this? Yes, please. At the top. Yes, at immediately after the opening curly of main function. ये मेन फंक्शन के बारे में बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप कोई फंक्शन लिख रहे हो, ठीक है, फंक्शन fun1 लिखा मैंने, तो यहाँ तो ऑब्वियसली आपको क्या लिखना पड़ेगा, अगर आपको वेरिएबल लिखना है तो इधर भी फर्स्ट लाइन पे लिखना पड़ेगा, बराबर है नहीं, क्योंकि इसका यूज आपको क्या करना है, आगे करना है, ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट ही होगा। समझ में आ रहा है ना कुछ? अगर यहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है बाबा कि सपोज ये 4 लाइन आपने लिखा है इधर, ठीक है, अगर यहाँ मैंने डिस्प्ले किया 4 लाइन के बाद फिर से मुझे सी यूज करना है, तो मुझे सी कहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा, यहाँ डिक्लेयर किया तो चलेगा? यस, ऐसे चलेगा? No, sir. No. So where we have to declare? At the first line. No, nothing will be happen where you are declaring, okay, here, where in the line number 13. But this is not an approach. Are you getting, guys? This is not an approach. So the approach of execution of C language is what? Okay, top to bottom. Yes, ऐसे होता है ना? किसी को पता है अप्रोच क्या होता है एग्जीक्यूशन का? टॉप टू बॉटम मतलब पहले आपका मेन फंक्शन आता है, उसके बाद में सारे फंक्शंस आते हैं। नाउ इफ आई राइट लाइक दिस, मैं यहां से निकाल के उसको यहां डाल देता हूं, अभी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा? कौन बताएगा? मैंने यहां सपोज ये सब निकाल देता हूं मैं, ये तो समझ में आएगा कि व्हाट इज द प्रोसीजर, राइट? मैं लिखता हूं fun1 इंटू ब्रैकेट लिखता हूं a कॉमा b। तो मुझे बताओ, इज दिस प्रोग्राम विल गेट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली? यस गाइस? My program will get executed or not? That is my question. Yes, please. If I copied all these things, if I paste into a browser, okay, let me paste here. This is a C program. Okay, then okay, यहां मैं लिखता हूं रिटर्न 0 सेमीकोलन। ओके, अभी यहाँ कुछ यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज बी कॉमा परसेंटेज बी। ओके, यहाँ क्या आएगा, ए कॉमा बी। ओके, सो हियर पासिंग द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 20, ओके, 10 एंड इक्वल टू 20। ठीक है गाइस? ओके, लेट मी एग्जीक्यूट। ठीक है, लेट मी मूव दिस। Let's see what is happening over there. Hash good stdio dot h. Yes, कौन बताएगा व्हाट इज एन एरर? कैन समबडी टेल? मैंने सही तो किया है सब, यहाँ मेन लिखा है, मेन में तो कोई एक्सेप्शन एरर है क्या? कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, फंक्शन भी मैंने बस सही से कॉल किया है, ए का वैल्यू भी मुझे ए में 10 मिला है, बी का वैल्यू 20 मिला है, वो मैंने यहाँ पास किया है। ओके, देन दैट विल बी कम्स ओवर हियर, देन दैट दिस विल बी एग्जीक्यूटेड, ओके, एंड दिस टू वैल्यू असाइन एंड दिस टू वैल्यू विल बी प्रिंटेड। तो ये व्हाट इज द इशू ओवर देयर? द प्रीवियस इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ fun1 वाज fun1 a comma b। तो मुझे बताओ कि वेयर इज एन एक्सेप्शन, वेयर इज एन एरर? Yes, can somebody tell? So this is comes under the procedure oriented and this is having some rule. Rule मतलब आपको जब देखो आपने यहाँ स्टार्ट किया, आपका एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, कौन बताएगा? Yes, at the first line. Okay, it will comes over here. आपका रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? At the line number first. But your execution is must start from main function, right? बराबर है ना? एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? Yes, please.
मेन फंक्शन स्टार्ट होगा तो आप इसके अंदर आओगे, इसके अंदर आने के बाद मेन इंटीजर ये दो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा। अभी मुझे बताओ लाइन नंबर 8 से लेके लाइन नंबर 9 तक जाने से पहले ये अपने जो कंट्रोलर है उसने कभी fun1 फंक्शन रीड किया है क्या? किधर रीड किया है क्या? उसको क्या पता उसका फंक्शन नीचे है? यस और नो? दिस इज अ सिंपल लॉजिक। जैसे मैंने अभी बोला कि अगर मैंने यहाँ सी यूज करता हूं, बराबर है कि नहीं? अभी सी मैंने किधर डिक्लेयर किया है क्या? नो सर। सो इफ आई एम यूजिंग अ सी इट विल ऑब्वियसली गिव एन एरर कि सी डिक्लेयर नहीं है बोल के। तो अभी वो क्या बोल रहा है? फन फंक्शन उसको नहीं मिल रहा है, ऐसा वो बोल रहा है, क्योंकि फन फंक्शन कॉल करने से पहले कंपाइलर को पता होना चाहिए कि आई एम हैविंग अ फन फंक्शन। अभी जब किसी बंदे को कॉल करते हो उसके पास उसका आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, फिर भी उसको कॉल कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो आपको पहले क्या होना चाहिए? उसका पहले आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। सिंपल थिंग। ओके, तो पहले कंपाइलर को क्या पता होना चाहिए? यस, दिस फंक्शन शुड बी देयर। ओके, हाँ, फंक्शन आप डिक्लेयर करो। अगर मैंने यहां से उसको कॉपी किया, ठीक है, और यहां मैंने उसको पेस्ट किया, अभी क्या होना चाहिए? आ गया 10 20 आउटपुट। मतलब क्या हो गया कि कौन कौन बताएगा मुझे? यस प्लीज। प्रायोरिटी नहीं भाई, आप कंपाइलर को आपको बताना है कि ये हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, इतना ही बताना है सिर्फ आपको। अगर मैं अभी देखो, अभी आपका एग्जीक्यूशन कहाँ से, सॉरी रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? लाइन नंबर 8 से होगा। वो यहाँ आएगा, फन फंक्शन रीड करेगा, प्रिंटफ को रीड करेगा, आएगा मेन में। अभी आपको कंपाइलर को पता है क्या मेन फन फंक्शन अवेलेबल है क्या नहीं? Yes, sir. Before execution, compiler will know that yes, fun function is there and that may be called at any time. बराबर है कि नहीं भाई? तो जब आप मेन फंक्शन में आओगे, यहाँ आओगे और लाइन नंबर 7 पे आओगे, हाँ, तो कंपाइलर का पता है कि प्रीवियसली हमने फन फंक्शन कहा तो रीड किया है, तो वो क्या करेगा? उस फंक्शन के ऊपर जंप करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और वापस कहाँ आएगा? यही आएगा जहां से वो फंक्शन कॉल हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ से रिटर्न 0 होगा, रिटर्न 0 इंटीजर के लिए है। आर यू गेटिंग गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिस इज अ रूल, बट दिस रूल इज अ रॉन्ग रूल। हमेशा मैंने पहले बोला था कि सी प्लस प्लस सी का जो एग्जीक्यूशन मैनर है वो कौन सा है? टॉप टू बॉटम है। टॉप टू बॉटम मतलब आपका मेन फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? सबके ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यस, मेन फंक्शन सबसे ऊपर होना चाहिए। अभी फिर से पहले जैसा हो गया, मुझे क्या करना है? फन फंक्शन कॉल करना है। मैं फिर से एक बार रन करके दिखाता हूँ, फिर से मुझे फन को एरर आ रहा है। So the thing is that if you have a body, okay, just you need to declare that fun1 फंक्शन। यहाँ कितने वेरिएबल्स है? इंटीजर के 2 वेरिएबल्स है, तो यहाँ मैं ऐसे किया। तो अभी मुझे बताओ कंपाइलर को आपको पता चला ना ये फंक्शन यहाँ डिक्लेयर किया है, मतलब किधर तो इसका बॉडी कंपलसरी होना चाहिए। आपने डिक्लेयर किया, बॉडी नहीं लिखा तो एरर देगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। ओके, दूसरा उसका नाम क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन। और इसको क्या बोलते हैं भाई? कौन बताएगा? फंक्शन डेफिनेशन। आर यू गेटिंग गाइस और नॉट? Yes, this is called what? A function prototyping. Means you are saying to the compiler that this function is available during the execution, that may be called at any time. Yes, if I go for the execution, you'll get the 10 and 20 out. This is called the procedure oriented program. Understood guys? Okay, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वी हैव सम। अभी देखो ये प्रोसीजर हो गया, ये मॉड्यूलर और ये जेनरिक प्रोग्राम लैंग्वेज। जब हम इसके एग्जैक्टली इसके ऊपर आएंगे, क्या बोलते हैं उसको, यूनिट के ऊपर आएंगे, ये अभी नहीं बताऊंगा। अभी आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोसीजर एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, तो देखो व्हेन वी गो फॉर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम, जैसे मैंने बताया कि आपको ये जो लाइन है ये आपको पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। दिस इज अ अप्रोच।
you don't change if you're writing any code while you're in a company, while you're working on the company, don't change the approach of the programming. Okay, if you're changing the approach of programming, okay, suppose आपने अभी ठीक है कोड लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपने कोड लिखा 10 लाइन का, 100 लाइन का, 500 का लाइन का कोड लिखा, ओके, और ये कोड भी सही से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कोई फ्यूचर में जाके आपके प्रोग्राम में और आपके एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ी आती है और वो सिर्फ वो आपके कोड लिखे हुए कोड के वजह से गड़बड़ी आती है, और उस टाइम क्या हो रहा है कि उस टाइम आप कंपनी में काम नहीं करते, आपने कंपनी छोड़ दी और दूसरे कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है ना. तो जो बंदा नया उस एप्लीकेशन के उस कोड के ऊपर काम कर रहा है वो तो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा, बाबा कि ये क्या लिखा है, बराबर है नहीं, क्योंकि सभी बंदे अपने जैसे अप्रोच वाले नहीं होते ना. आर यू गेटिंग गाइस? और बिकॉज द ह्यूमन इज थिंकिंग अ डिफरेंट थिंकिंग फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. क्योंकि मैं क्या सोचता हूँ आपको पता नहीं है, आप क्या सोचते हो वो मुझे पता नहीं है. अरे अंडरस्टूड और नॉट गाइस? आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, so this is the thing that we are using for the what? Procedural oriented programming. The word orientation means what? We have to write the code. What is the orientation mean? As per the logic, as per the requirement, we have to do or we have to behave the program. समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी मैं आता हूं, ये मैं निकाल देता हूं अभी, ठीक है, ओके. ये मेरा C++, C का अभी किसी के साथ कंफ्यूजन है? What is the procedure oriented programming? यस, सी में बहुत सारे चेंजेस आपको करने पड़ेंगे. क्या चेंजेस है? एक तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है, ठीक है. अभी यहाँ देखो, इधर ही मैं आपको बताता हूँ कितने सी में रूल फॉलो करने पड़ते हैं, तभी जाके आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. अगर मैंने यहां से ये कॉमा हटा दिया, ये सपोज ये कॉमा हटा दिया, क्या होगा? एग्जीक्यूशन हो जाएगा आपका. देखो क्या एरर बोलता है ये, ए और बी, ये ए और बी वेरिएबल है ही नहीं. दिस इज अ वेरिएबल कंसीडरिंग, राइट? सो ए और बी वेरिएबल है ही नहीं. आर यू गेटिंग और नॉट? अगर मैं यहां ऐसे डिक्लेयर करता हूं इंटीजर ए बी, देन योर प्रोग्राम विल एग्जीक्यूटेड. देखो ये गार्बेज वैल्यू आ गई, जैसे मैंने कल बोला था, बराबर है ना. तो ये जो चीजें हैं ये आपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है कि जो भी आप सी का और सी प्लस कोई सा भी कोड लिखो, वी हैव टू फॉलो सम ओके रूल्स और प्रोसीजर. आई एम नॉट गोइंग टू से दैट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज आल्सो अ प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. दिस इज अ पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड पार्शियल प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. हाउ आई विल टेल यू एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम. नाउ this object orientation means what? We have to write your code as per the logic, and here everything is user defined. Where? In the object oriented programming. But in object based programming, what is going to be happening? You can't create the object, it is totally based on the previous object. जैसे हमने ये फंक्शन देखा, printf फंक्शन, we can't do the any changes in that function. मतलब print के जो ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ फंक्शन है उसके अंदर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते. दिस इज द सेम लाइक, बट दिस इज डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट. आर यू गेटिंग गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो बेस्ट मींस व्हाट? द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी प्रेजेंट एंड वी आर डूइंग सम मॉडिफिकेशंस, ओके, और वी कैन से ऑपरेशन ऑन द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग. बट दिस ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग इज आउट ऑफ डेट नाउ. ये कोई भी यूज नहीं करता, ये आउट ऑफ डेट हो गया है. Now the most widely used is what? Object oriented programming. Have you know Linux system? Yes guys, Linux, Yes, sir. Unix. Can you know, have you know that in which programming language Linux has been developed? किसको पता है Linux, Unix जो systems है ये किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू डेवलप किया गया है? Yes, somebody knows? ये प्योरली सी लैंग्वेज के ऊपर बना गया है, प्योरली ओनली सी लैंग्वेज है. देयर विल बी नो सी प्लस प्लस, नो जावा. आप जो लिनक्स लैंग्वेज देखते हो ना, देखा है ना कभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? Yes, sir. तो ये पूरा किस में डेवलप किया गया है? उन्होंने सी में डेवलप किया गया है. अंडरस्टूड गाइस? सो दिस इज व्हाट द प्रोसीजर अप्रोच. नाउ विल गो फॉर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. Now what is object oriented? Object oriented is totally based on object, okay,
अब अभी मैं थोड़ा सा एक सिंपल टर्म बताऊंगा. Objects is totally depend upon class. Okay, class is totally depend upon okay object oriented programming. ये उल्टा थोड़ा में लिखा जाएगा. Object oriented programming is not a C++. I am telling again and again. Object OOP is not a C++. Okay, C++, Java, these are the programming languages. Keep in mind, these are the programming languages. What is your subject name? Object oriented programming. Object oriented programming is a concept. Okay, inside that you have to use a C++ or Java or Python or ASP.NET or C scripting. नहीं यूज करते अभी, वो तो बंद हो गया, मतलब यूज करते पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में यूज नहीं करते हैं. ठीक है. सो C++ is a programming language which is used for the object oriented, but object oriented programming is not a C++ programming language. ये ध्यान में रखना है आपको. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसके अंदर क्या आता है, C++, जावा, ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं. तो आपको हमको अभी पढ़ना क्या है, C++ पढ़ना है. ठीक है. तो मैं थोड़ा सा और डीप में चला जाता हूँ. ठीक है. मैं सिंपल प्रोग्राम लिख देता हूँ. ठीक है. आपको समझ में आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो मैं ये लिखता हूँ इंटीजर मेन. फिर से मैं आ गया इंटीजर मेन के पास. ठीक है. तो यहां मैं लिखता हूँ रिटर्न 0, जो कि ये इंटीजर के ये रिटर्न टाइप की वजह से हमने यहाँ रिटर्न 0 लिखा. रिटर्न 0 का मीनिंग क्या हो रहता है, हमेशा फॉल्स रहता है. ठीक है. ये ध्यान में रखो. नाउ आई वांट टू डिक्लेयर सम वेरिएबल. यस प्लीज. अब तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा. लेट मी शो यू, क्योंकि हमने अभी बड़ा कोड लिखा ही नहीं है. ठीक है. एज पर योर कंसर्न जस्ट वी हैव टू राइट 1 and just go for execution. Okay. अभी तो कुछ उसका ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, देखो ये जो मेन फंक्शन ये बाय डिफॉल्ट एक ही बार कॉल होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं. अगर आपने मेन फंक्शन कहा यूज किया है दूसरी बार, मतलब उसको फिर से एक बार उसको कॉल करना है. अभी तक तो मैंने तो ऐसा कुछ प्रोग्राम में देखा है कि मेन फंक्शन 10 बार किधर कॉल हुआ है. एक प्रोग्राम में एक ही बार मेन फंक्शन कॉल होगा. एक्चुअली एक पूरे प्रोजेक्ट में एक ही मेन फंक्शन रहता है जिसके थ्रू बाकी के क्या होते हैं, सभी कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है. इसमें कोई मतलब ये ऑप्शन नहीं कि व्हाट वी आर कंसीडरिंग 0 and 1 ओनली. जैसे आपको बोलते हैं कि 0 and 1 इज अ बाइनरी नंबर एंड 0 विल बी फॉल्स एंड 1 विल बी अ ट्रू. ठीक है. अगर आप इसको इफ कंडीशन में डालोगे so you'll definitely get a false value. Got it? Okay. Now next thing. Now what I'm trying to write over here, this is a, अब ये मेन फंक्शन लिखा है. कौन बताएगा ये सी लैंग्वेज में लिखा है ये C++ में लिखा है? पता नहीं मुझे अभी तक, क्योंकि ये जब मैं कॉल करूंगा तो ही पता चलेगा कि ये C और C++ में आता है या नहीं. जब मैं लिखूंगा C आउट, ठीक है, यहां लिखूंगा हेलो. ठीक है. C++ word and then something we have to write this like and semicolon. Now using this cout we can say that this is a C++ language. Are you getting, guys? Now I will again elaborate. Before going to write this one, I will write hash include. Yes, for C++ what you have to write, iostream.h. डॉट एच मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज दिस इज अवेलेबल इनसाइड द टर्बो सी. ये मैं अभी ये निकाल देता हूं क्योंकि हम अभी टर्बो सी यूज नहीं कर रहे, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सो आईओस्ट्रीम इज व्हाट. यस, आईओस्ट्रीम को लंपम किसको पता है, इनपुट. यस प्लीज. आउटपुट स्ट्रीम. अब ये इनपुट मतलब यू हैव टू टेक द यूजर इनपुट फ्रॉम यूजर. Output means we are displaying something, and stream means what? This is considered in very lowest level of the data. तो हम बताओ, हमारा कोई बताएगा कि हमारा जो डेटा है जो हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन से टाइप का डेटा हो सकता है. इंटीजर में भी, फ्लोट में भी, कैरेक्टर. बट उसका जो साइज है वो लोएस्ट, मतलब जो पहला वाला साइज है वो क्या है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम द बीट लेवल. क्या बाइट लेवल है, कौन बताएगा. Yes, it is start from bit or byte. Sir, byte Byte level. You see, okay, you are trying to say byte level, right?
but can you tell me what is the how many bytes in one bit? Sorry, how many bits in one byte? What you are considering? So here 8 बिट, मतलब इन दोनों ये जो यूनिट है, ओके, अपने वैल्यू कैलकुलेट करने का सबसे छोटा कौन है, बाइट है या बिट है? बिट होगा। बिट है, तो आपका जो ये C++ है ये बिट के ऊपर काम करता है। हाँ, 8 बिट होने के बाद आपका 1 बाइट बन जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। 1 बाइट होने सॉरी 8 बिट होने के बाद 1 बाइट बनेगा, पर वो स्टार्ट काम किसके ऊपर कर रहा है, एक एक बिट के ऊपर काम कर रहा है, दैट इज द मेन थिंग। ओके, आर यू गेटिंग और नॉट? Now, Yes, sir. the stream meaning in your life is what? Air, we can say. A bubble air. Stream का हमारे लाइफ में हम नॉर्मल यूज क्या बोलते हैं? Stream means what? हवा, गर्म हवा हम बोल सकते हैं और ठंडी हवा बोल सकते हैं। अभी मुझे बताओ, आपका जो ये नॉर्मल लाइफ में बोल रहा हूँ, डेली यूज में लाइफ में जब हवा आती है, ओके, सपोज यू आर डूइंग समथिंग, इफ यू आर स्टीमिंग योर राइस, ओके, जब हवा आती है जो रहता है वो एक जगह खड़ा रहता है कि हवा के साथ चला जाता है, हवा के साथ चला जाता है? आपने कभी स्टीम राइस खाए कि नहीं? यस, आर यू गेटिंग what I am trying to say? Yes, sir. सिंपली एक फ्लैग, कोई भी फ्लैग ले लो, फ्लैग मतलब हमारे हिंदी में उसको बोलेंगे झंडा, ठीक है। मुझे बताओ, जब हवा आती है तो झंडा एक ही जगह खड़ा रहता है क्या जिस हवा के दिशा में वो लहराता है? क्या होता है? हवा के दिशा में लहराता है, मतलब द फ्लैग विल बी फ्लोइंग, ओके, in the direction of air. So same something will be happening. Your stream is going to be a direction where your program is going to be a flow. Are you getting I am trying to say? जैसे आपने प्रोग्राम लिखा है, जिस दिशा में आपका प्रोग्राम जा रहा है, जिस वे में आपका प्रोग्राम जा रहा है, उस वे में क्या होगा, आपका बिट बाय बिट एग्जीक्यूशन होगा। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रीम। अब ये मैंने इतना एलेबोरेट क्यों किया है, ठीक है, कौन बताएगा? क्योंकि हमको क्या करना है, ये इनपुट में क्या क्या है, ये आउटपुट में क्या क्या है, ये आपको चेक करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इनपुट। ओके, दिस इनपुट कंटेन्स व्हाट? आई स्ट्रीम, ठीक है। दिस आउटपुट कंटेन ओ स्ट्रीम। ओके, आई स्ट्रीम मतलब इनपुट स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम मतलब ओ स्ट्रीम, इन दोनों का मिला के क्या बना है? आईओ स्ट्रीम बना है। समझ में आ रहा है ना कुछ? दो इस आई स्ट्रीम में हमारे बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे कि सी इन है, ठीक है, सी इन है, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमको यूज करना है। ये भी अभी नहीं बताऊंगा, जितना चाहिए उतना बताऊंगा। और इसमें क्या आता है? सी आउट। सी का मीनिंग क्या होता है? कंसोल। और इन का मीनिंग क्या होता है? इनपुट लेना। इस सी का मीनिंग क्या होता है? कंसोल। और इस आउट का मीनिंग क्या होता है? समथिंग वी हैव टू राइट ऑन द कंसोल और समथिंग वी हैव टू डिस्प्ले। And these are the not a function, these are the objects. जैसे मैंने अभी बोला था ना ऑब्जेक्ट, ये देखो ये यहां मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट, बराबर है? ऑब्जेक्ट कहां से निकलता है भाई? यस, ऑब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन व्हाट? क्लास। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस क्लास के ऊपर डिपेंड है? यस प्लीज, इस आई स्ट्रीम क्लास के ऊपर डिपेंड है। समझ में आ रहा है ना कुछ, या नहीं समझ में आ रहा है? अभी ये क्लास क्या है ये हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है, फिर भी एक बार ध्यान में रखो, ठीक है। दिस इज अ ऑब्जेक्ट एंड दीज आर व्हाट? क्लास, ठीक है। अभी हमने क्लास स्टार्ट नहीं किया तो थोड़ा सा ऊपर से जाएगा आपको, सिर्फ जस्ट मैंने पहले बोला था कि समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। गेटिंग और नॉट गाइस? दिस IO stream will be divided into two class. First one is the iStream class and second one is the OStream class. This scene depends upon this iStream and this cout depends upon OStream. A scene is an object, okay, cout is also object. Scene comes under iStream and cout comes under OStream. जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं stdio, ठीक है, तो std का i क्या है? इनपुट है। इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन है, कौन बताएगा? यस प्लीज, printf, बराबर है ना। और आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन है? सॉरी scanf। और इससे कौन सा फंक्शन है? वो समझ में आ रहे हैं ना भाई? Yes, प्लीज। सो
हियर इनपुट एंड आउटपुट इट्स नॉट अ क्लास, मैं पहले बता देता हूँ, ये है हेडर्स। क्या है, इसको हेडर बोलेंगे, बिकॉज सी लैंग्वेज में क्लास नहीं होता है, उसमें क्या रहते हैं, हेडर रहते हैं। समझ में आ गया? और ये हेडर के अंदर क्या रहते हैं, फंक्शन रहते हैं। ओके, लेट मी शो यू समथिंग इफ आई एम हैविंग दैट src डेमो। ये देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको कुछ तो? यस प्लीज। ये देखो, यहाँ एक इंक्लूड फोल्डर दिख रहा है अपने को, दिख रहा है ना? हाँ सर। इस इंक्लूड फोल्डर के अंदर क्या होना चाहिए आपका, को आयोस्ट्रीम कुछ तो फाइल होना चाहिए। देखो आयोस्ट्रीम में मिलता है कि आपको, आयोस्ट्रीम नहीं मिलेगा, क्यों आयोस्ट्रीम को इसके अंदर नहीं आता है। तो stdio चेक करते हैं। देखो std int है, std out हो जाए, हमको क्या चाहिए, std out चाहिए ना, वो दूसरे क्लास में भी हो सकता है। लेट मी चेक। ये देखो, यहाँ आयोस्ट्रीम मिल रहा है अपने को, समझ में आ रहा है ना? ये देखो मिल गया आयोस्ट्रीम, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। सही है क्या गलत है? देखो इसमें क्या क्या है, आईस्ट्रीम है, उसमें क्या क्या है, यस प्लीज, ओ स्ट्रीम है, और इसमें एक ऑब्जेक्ट भी है जो कि प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ये देखो, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, std ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो मैंने इसको अभी इलेबोरेट किया, ये छोड़ दो, इसको हमको कोई लेना देना भी नहीं है, तो छोड़ दो। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम कौन सा है, सीन है, जो कि यहाँ आई स्ट्रीम में मिल रहा है। सी आउट क्या है, आउट स्ट्रीम क्या है, जो कि एक क्लास है, ठीक है। और ये जो सीन सी आउट ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ आपको मिल रहा है, देखो यहाँ देखो, यहाँ सीन मिल रहा है, यहाँ सी1 मिल रहा है। सीन कहाँ से आ रहा है, ये देखो, थोड़ा मैं डीप में जाके बता दो, सीन कहाँ से आ रहा है भाई, किस क्लास से आ रहा है, आइसक्रीम। आइसक्रीम से आ रहा है। सी आउट कहाँ से आ रहा है, ओ स्ट्रीम से आ रहा है। ये तो पिक्चर क्लियर हो गया। बट हम डायरेक्टली सी इन सी आउट भी यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज वन एसटीडी। ये जो एंड लिखा है ना, दिख रहा है सबको एंड, ये देखो यहाँ, ये इस एन का मीनिंग है नेम स्पेस स्टैंडर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन, ये नेम स्पेस स्टैंडर्ड क्या है, ये भी मैं बताऊंगा। नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक है। एसटीडी तो ऑलरेडी यहाँ है ही, ये देखो एसटीडी लिखा है ना यहाँ। एक सिंपल में एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ये देखो, ये देखो जैसे मैंने आईस्ट्रीम यूज किया, उसके साथ एसटीडी भी आता है, और ये एसटीडी यूज करने से बाद सी आउट आ रहा है। अगर मैं एसटीडी हटा दूं, ये हटा दूं, तो देखो मुझे कहाँ का एरर आने वाला है। देखो ये एरर आ रहा है, मुझे सी आउट एरर आ रहा है। मैंने आईस्ट्रीम लिखा है, फिर भी मुझे एरर क्यों आ रहा है, सी आउट आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि जब हम ये दो क्लासेस यूज करते हैं, ये दो क्लासेस को उन्होंने एक ऑब्जेक्ट के साथ अटैच किया है। क्योंकि क्या होता है, देखो दो क्लास का अगर आपको अलग अलग एक ही टाइम पे यूज करना है, एक ही टाइम पे मतलब दोनों को कॉम्बिनेशन करके यूज करना है, तो दोनों का एक टाइम पे ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। देखो यहाँ आई स्ट्रीम का अलग ऑब्जेक्ट बना है सी इन, और स्ट्रीम का अलग ऑब्जेक्ट बना है सी आउट। अगर आपको दोनों को कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे लिखोगे, सी सी इन आउट ऐसे लिखोगे क्या? अगर मुझे दोनों का ऑब्जेक्ट बनाना है एक तरीके से, तो ऐसे लिखोगे सी सी इन, और ऐसे लिखोगे सी इन सी आउट बोल के, ऐसे कभी लिखोगे? टोटली रॉन्ग, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिलाने के लिए उन्होंने क्या बनाया है, एक कंबाइन ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको बोलते हैं नेम स्पेसेस। ये देखो यहाँ नेम स्पेसेस है, ये जो नेम स्पेस कीवर्ड है, ये भी आपको बताऊंगा एक्चुअली है क्या नेम स्पेस। दिस इज फॉर जस्ट एन इंट्रोडक्शन। आर यू गेटिंग गाइस? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज अ बेसिक, ठीक है। अगर आपके क्लास में पढ़ाया जाएगा तो ये आपको इतना डीप में समझाया नहीं जाएगा। डायरेक्टली उन्होंने लिखा होगा तो आई स्ट्रीम, चलो लिखो ये आई स्ट्रीम। सो व्हाट इज यूज ऑफ दिस आई स्ट्रीम, व्हाट इज यूज ऑफ दिस नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ओके। इफ आई रिमूव दिस स्टैंडर्ड व्हाट विल बी एरर एंड हाउ टू, देखो विदाउट यूजिंग दिस नेम स्पेस स्टैंडर्ड आल्सो आई कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, बट हाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू नाउ, ओके। जब आप एक्चुअल प्रोग्राम करने जाओगे तो विदाउट यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, मतलब
इसको यूज करने के मतलब इसको मुझे यूज नहीं करना है, फिर भी मैं प्रोग्राम रन कर सकता हूँ। वो कैसे रन करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। समझ में आ रहा है ना कुछ तो? यस गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ओके ये देखो, ये जो फर्स्ट जो यूनिट है हाफ यूनिट, थोड़ा सा बोरिंग क्यों जाने वाला है, क्योंकि इसमें कोई प्रोग्राम है ही नहीं, ये सब थोड़ा क्या टेक्निकल बातें बताने की ये आपको। इसके बाद हम जो भी कंसेप्ट देखेंगे ये प्रोग्राम को लेकर ही देखेंगे। विदाउट सिंगल प्रोग्राम वी कांट गो विद द थ्योरी। समझ में आ रहा है गाइस? यस प्लीज, आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। ओके नाउ, तो अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, हाउ दिस IO स्ट्रीम कम्स, ओके, हाउ दिस सी आउट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। तो सी आउट एनेबल होने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड है हमने ऑलरेडी देखा है, वेयर इट इज अवेलेबल इनसाइड द दिस IO स्ट्रीम। पिक्चर क्लियर हो गया आपको? मतलब कौन सा किसके ऊपर डिपेंड है, कौन बताएगा मुझे? बता, IO स्ट्रीम किसके ऊपर डिपेंड है? ये एक सिंपली सेपरेट क्लास है, ठीक है ना? तो ये std किसके ऊपर डिपेंड है? यस, ये IO स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड है। ये सी आउट किसके ऊपर डिपेंड है? ये std और IO स्ट्रीम दोनों के ऊपर डिपेंड है। सी इन किसके ऊपर डिपेंड है? ये भी std IO स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड है। आर यू गेटिंग गाइस और नॉट? कुछ समझ में आ रहा है? Yes, please reply. Are you getting or not? Yes, sir. Okay. So we'll go with the next point. What is the next point? What is now your fundamentals and the जो हमने अभी देखा है वो fundamentals ही है. Now actual we are checking what is a programming now. Object oriented programming. Okay. So what is the namespaces? So namespaces are predefined like your std, stdr. ये देखो, ये जो है ना cin, cout, cerr, clogs, okay, wc, wcout, wcr, wclog. These all are called what? Namespaces. What it is called are namespaces. Namespaces means what? These keywords are reserved. जैसे कि इंटीजर रिजर्व है ना, इसको हम कभी देखो, इंटीजर को हमने अब ऐसे कभी यूज किया है, इंटीजर और इस इंटीजर को हमने आगे जाके वैल्यू दी है, ऐसे कभी हुआ है क्या? किसी ने कभी किया है क्या? मुझे बताओ। तो आपने गलत किया है। ऐसे कभी किया है क्या हमने कभी? नो। व्हाई? बिकॉज दिस इज एन रिजर्व कीवर्ड, वी कांट डू एनीथिंग विद दिस। दिस इज हैविंग a specific meaning and we can't change that meaning. Yes or no? So ये चीजें पॉसिबल नहीं है, तो ये भी चीजें हम उसको भी क्या कर सकते हैं? चेंज नहीं कर सकते। इसको भी हम ऐसे कभी नहीं लिख सकते, सी आउट, ठीक है, और सी आउट को कुछ तो वैल्यू दे दिया हमने, ऐसे कभी भी नहीं कर सकते। और ये तो टोटली रॉन्ग ही है, ये तो लॉजिक में भी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट अ वेरिएबल। आर यू गेटिंग और नॉट? सो वी कांट असाइन लाइक दिस। ये छोड़ दो, अगर मैंने ऐसे भी लिखा C1 एंड C1 इक्वल टू 10, ये भी नहीं कर सकता मैं। ये तो चलो ठीक है, ये पॉसिबल है क्योंकि ये क्लास कंसीडर हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट बन सकता है, बट ये C1 इज इक्वल टू 10 कभी भी नहीं बन सकता है। दिस इज ऑलवेज रॉन्ग। समझ में आ रहा है गाइस? यस प्लीज, अंडरस्टूड और नॉट? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट? इट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास. यहां लिखता हूं मैं, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस. इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक क्लास का एक इंस्टेंस रहता है, जो इंस्टेंस आपको क्या करता है? इट विल एक्सेसिंग ऑल डेटा, ओके, फंक्शंस फ्रॉम क्लास. जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, ओके, उसी क्लास का क्या करेगा? वो डेटा एंड फंक्शन क्या करेगा? एक्सेस करेगा. अभी ये क्लास क्या है, ये मैं आपको इस ये पूरा पॉइंट होने के बाद में एक सिंपल एग्जांपल लेके बताऊंगा व्हाट इज अ क्लास. मतलब हमने अभी तक जो भी कंसेप्ट देखा है आज का, वो पूरा आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा. ठीक है, या तो हमने आधा कोड लिखा ही है, इसमें हम क्या करेंगे? वो ऐड कर देंगे क्लास. नेक्स्ट थिंग, क्लासेस. नाउ क्लासेस कम्स हियर. ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बाद में लेता हूं. नाउ डेटा मेंबर्स. ये देखो, ये वर्ड मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे बताओ, यू आर अ मेंबर ऑफ विच क्लास? SC ना, राइट? यस गाइस,
Yes, sir. You are the member of SC class. So can you, I say that your whole class is considered as one class? Yes, please. Okay. So all of the students in that class will be member of that class. This is considerable. ये कंसिडर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपके क्लास के सभी स्टूडेंट्स उस क्लास के मेंबर है कि नहीं? बराबर है ना? पक्का है? अभी देखो, उस क्लास में सिर्फ स्टूडेंट ही है क्या? No, sir. There are also teachers. So there are the teachers also. So teachers are also member of that class. Yes or no? But I can't. अभी देखो, मैं अभी कंपेयर करके बहुत अच्छे तरीके से आपको एग्जांपल देता हूँ. Suppose this is a class AC. मैं यहाँ लिखता हूँ class AC और ये दूसरा क्लास है मेरा B. ओके, AC क्लास में एक है प्रबल, ठीक है, और B क्लास में है सपोज कृष्णा, ठीक है. नाउ प्रबल वांट्स टू नो अबाउट द कृष्णा. कैन ही डायरेक्टली नो? यस प्लीज. प्रबल को क्या करना है? कृष्णा का इंफॉर्मेशन निकालना है. तो डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन निकाल सकता है क्या? No, sir. नो सर. वाइस वर्सा. मैं उल्टा लिखता हूं अभी. कृष्णा डायरेक्टली प्रबल का डेटा निकाल सकता है क्या? आप बोलोगे सर बी कृष्णा सीनियर है तो वो निकाल सकता है. ऐसा यहाँ कोई सीनियरिटी का कोई सवाल नहीं है, ठीक है. सो ना प्रबल कृष्णा का डेटा निकाल सकता है, ना कृष्णा प्रबल का डेटा निकाल सकता है, क्योंकि दोनों का क्लास क्या है? पूरा क्या है? पूरा अलग है. अभी मैं यहाँ क्या लिखता हूँ? प्रबल के साथ सौरभ का नाम भी लिखता हूँ. अभी मुझे बताओ, सौरभ प्रबल का डेटा बता सकता है क्या? हाँ सर. Yes, sir. यस, क्योंकि वो उसी क्लास में पढ़ता है, ऑब्वियसली मालूम होगा. अभी मुझे तो प्रबल सौरभ का कोई नाम बता, रोल नंबर बता सकता है कि नहीं बता सकता है? बता सकता है भाई, बराबर है कि नहीं? ये तो लोकल जैसे हो गए ना, लोकल वेरिएबल जैसे हो गए ना. ये जो दो लोग हैं, ये एक्सेसिबल किधर है? सिर्फ इसी क्लास तक लिमिटेड है ना भाई. समझ में आ रहा है ना कुछ? अभी ये कृष्णा कहाँ तक लिमिटेड है? ओनली बी क्लास तक लिमिटेड है. उसके बाहर उसका एक्सेस ही नहीं है. वो कुछ को किसको पूछ भी नहीं सकता, किसको कुछ बोल भी नहीं सकता. समझ में आ रहा है ना कुछ? सो दिस इज कॉल्ड द मेंबर. प्रबल इज अ मेंबर ऑफ एसी क्लास, सौरभ इज अ मेंबर ऑफ एसी क्लास, and Krishna is a member of B class. If you want to combine this one, so we can have our next option is what? Yes, what is option? हम तीन लोग कैसे कंबाइन हो सकते हैं? डिपार्टमेंट के थ्रू. तो यहाँ कौन कौन आएगा? यस, प्रबल आएगा, सौरभ आएगा और कृष्णा भी आएगा. बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन दिस वन. दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस. यस प्लीज. So this is one. And the class or object oriented programming execution manager or what to talk. जैसे सी कौन सा अप्रोच ये है? यस, Top to bottom. टॉप टू बॉटम मतलब वो ऊपर से नीचे तक जाता है. ये क्या होता है? उल्टा होता है. ये नीचे से ऊपर तक एग्जीक्यूशन मिशन आता है. समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन होता है वो सबके नीचे रहता है. उससे पहले जो भी आप कोड लिख रहे हैं वो ऊपर रहता है. मेन के नीचे कुछ नहीं होना चाहिए. ऐसे इसका अप्रोच बोलता है. बट यू कैन राइट आफ्टर द मेन आल्सो. बट you will be writing that one. You are not following the rules, or you are not approaching. You are not using the correct approach for the programming language. पिक्चर क्लियर हो गया सभी? ये हो गया मेंबर्स. नाउ मेथड्स मींस व्हाट? फंक्शंस. अगर मुझे इसका डेटा इस क्लास के बाहर एक्सेस करना है तो मुझे इसको फेस करने की जरूरत नहीं है. इसके अगेंस्ट में कुछ फंक्शन लिखूंगा, प्रबल के अगेंस्ट, सौरभ के अगेंस्ट, कृष्णा के अगेंस्ट, और उस फंक्शन को मैं क्या करूंगा? उस क्लास के बाहर एक्सेस करूंगा. अभी एक्सेस करने के लिए भी एक प्रॉब्लम है अपने पास. जो ये प्रॉब्लम आपको कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी. किधर गई? इसमें देखो, इंफॉर्मेशन हेडिंग में मिलेगी. समझ में आ रहा है ना? ये हेडिंग का मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. ठीक है, ये समझ में आ गया? नाउ messages means you can pass a message from one class to another class. Now next one is what? These are the four main things that I have to learn. देखो, ये जो डेटा एनकैप्सुलेशन है ये आपको हम अभी स्टार्ट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं. डेटा सॉरी एनकैप्सुलेशन, एक्सट्रैक्शन. These are the actually see
there are the main four pillars. We can say pillars of object-oriented programming. First one is the encapsulation. Second is the abstraction. Third one is the polymorphism, and fourth one is the inheritance. These are the main four pillars of the object-oriented programming. आप object-oriented का कौन सा भी प्रोग्राम ले लो, उस प्रोग्राम में इन चारों में से कोई भी एक कंसेप्ट यूज होता ही होता है. चारों भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, बट कोई मतलब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में इसमें से एक भी यूज नहीं होता है, ऐसा एक भी प्रोग्राम अभी तक वर्ल्ड में नहीं है. Are you getting or not, guys? Yes, what I'm trying to say, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैविंग फोर. अब देखो आपका एक नेक्स्ट जो यूनिट है किसके ऊपर डिपेंड है? इनहेरिटेंस. बाप रे, मतलब इसमें जो एक पिलर है इसके ऊपर पूरा यूनिट है आपका. उसके बाद नेक्स्ट यूनिट किसके ऊपर डिपेंड है? पूरे पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर डिपेंड है. ठीक है, मतलब इतना बड़ा ये क्या है, ये कंसेप्ट है इनहेरिटेंस एंड द पॉलीमॉर्फिज्म. इसमें एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन छोटे-छोटे चीज है, बट दिस इनहेरिटेंस इज वेरी बिग थिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो वेरी बिग थिंग. ओके, इन चारों को कंबाइन करने के बाद आपका फुल फ्लेज एक क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट, एक पूरा एप्लीकेशन बन सकता है. पिक्चर क्लियर हो गया गाइस? यस प्लीज. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट डेटा एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन ये थोड़ा मैं और हिट में जाके बताता हूँ. ओके, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा है एनकैप्सुलेशन. ओके, यहाँ लिखा है एनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग द डेटा. रैपिंग का मीनिंग एग्जांपल कौन बताएगा? रैप करना, जैसे हम चॉकलेट चेक करते हैं, राइट? वो रैप में रहता है ना, जैसे कि कैप्सूल रहती है अपनी, जब हम बीमार पड़ते हैं तो कैप्सूल लेते हैं. कौन कह रहा है ना? रैपिंग का मीनिंग क्या होता है? वी आर स्टोरिंग द डेटा इनसाइड ओके सम रैप, जो किसी को दिखाई नहीं दिया जाना चाहिए. ओके, सो वी कैन से इट इज अ हाइडिंग प्रोसेस. वी कैन से हाइडिंग प्रोसेस मतलब मुझे क्या करना है, मुझे जो डेटा दिखाना है उतना ही दिखाना है, बाकी कुछ नहीं दिखाना चाहिए. ओके, सो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में आते हैं तीन लोग. ठीक है, पहला आता है प्राइवेट, ये आपने वर्ड सुना होगा भाई, पब्लिक. एंड तीसरा कौन आता है? यस, प्रोटेक्टेड. तो समझ में आ रहा है ना? इसको बोलते हैं एक्सेस फाइल्स. क्या बोलते हैं इसको? यस गाइस, क्या बोलते हैं इसको? बताओ प्लीज. एक्सेस स्पेसिफाइज मतलब आपको एक्सेस कैसे चाहिए, कौन सा चाहिए, किसका चाहिए, ये कौन डिफाइन करेगा? ये तीन लोग डिफाइन करेंगे. मैं पहले के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता हूं, प्राइवेट. तो मुझे बताओ प्राइवेट कौन एक्सेस कर सकता है? सिंपल है, उसके नाम के ऊपर नाम का डायरेक्टली मीनिंग ले लो और उसके ऊपर आप मुझे बोल दो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट. थोड़ा फास्ट बोलो क्योंकि मुझे खत्म करना है. The functions of same class. No, I am not asking about another. Only tell me what is the meaning of private. मैं एक simple example लेता हूँ. A and B are the two friends. ठीक है, A का जो Gmail का पासवर्ड है, ठीक है, Gmail पास, ठीक है, वो B को पता नहीं है. ठीक है, और ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो A का जो प्राइवेट डेटा है वो हम B को बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? यस प्लीज. मुझे बताओ दो लोगों में कभी कोई चीज प्राइवेट रहती है क्या? कभी होती है क्या? मुझे बताओ. नो सर. नो, सिंपल थिंग. दो लोग में प्रोटेक्टेड होता है, मतलब आपको सिर्फ एक को ही देना है. सपोज आपके पास और एक बंदा है सी बोल के, ठीक है, मुझे क्या करना है कि जीमेल का पासवर्ड सिर्फ मुझे बी को ही देना है. किसको देना है? सिर्फ बी को देना है, सी को नहीं देना है. वो भी आपकी क्लास का मेंबर है ना. तो यहाँ कौन सा इंफॉर्मेशन होता है? यहाँ प्रोटेक्टेड होता है. मतलब whom I want to give, that is only
द ओनली वन सोर्स। प्राइवेट मतलब ये जो जीमेल का पासवर्ड है ये सिर्फ एक के पास रहेगा, वो बाकी किसी के पास भी नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखो। दिस ए इज नाउ वी आर कंसीडरिंग एज अ क्लास नॉट अ मेंबर, दिस बी इज कंसीडर्ड एज अ क्लास नॉट अ मेंबर, दिस सी इज कंसीडर्ड एज अ क्लास नॉट अ मेंबर। मतलब इसका मीनिंग ये एक के अंदर जितने भी लोग हैं उनको पता चल सकता है बाबा की जीमेल का पासवर्ड क्या है, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू दिस ए क्लास। नाउ पब्लिक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पब्लिक? यस, एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग, बराबर है कि नहीं? मतलब ये जो जीमेल का पासवर्ड है, अगर मैंने ए को पब्लिक लिखा, ठीक है ना, तो ये जो जीमेल का पासवर्ड है किसको किसको पता चलेगा? ये उसके क्लास में तो पता चलेगा ही चलेगा, बाकी जितने क्लासेस है उनको भी पता चलेगा जीमेल का ए का पासवर्ड ये है। अंडरस्टूड गाइस? यस सर। समझ में आ रहा है ना? इसको बोलते हैं ये जब देखो अभी जब हम डेटा प्राइवेट कर देते हैं तो वो डेटा आपको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, तो डेटा क्या हो गया? वो हाइड हो गया। पब्लिक क्या, जब पब्लिक करते हो तो डेटा हाइड नहीं होगा, प्राइवेट क्या तो डेटा समवॉट हाइडिंग। समवॉट मतलब जिसको दिखाना है उसको दिखेगा, जिसको नहीं देखना है नहीं दिखाना है उसको वो नहीं दिखेगा। अंडरस्टूड गाइस? समझ में आ रहा है ना? जस्ट 1 मिनट। हाँ सर। ओके, अंडरस्टूड गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू? समझ में आ गया? अभी मुझे बताओ अब तक जितना भी कंसेप्ट मैंने पढ़ा है इसमें किसको प्रॉब्लम है? नहीं ना? यस प्लीज रिप्लाई, अदरवाइज No, sir. No, sir. okay. So now what we do today, we are not taking too much because this is the first day, you may get bored. Okay, so tomorrow we'll start at 8:45 to 9:45. Okay, that is okay? Sir, Typical. Yes sir, please repeat the timing. 8:45 to 9:45, क्योंकि 10 बजे आपका क्लास रहता है ना? Yes, sir, but every day or alternate days? So आपको कैसा लगता है, एवरीडे चाहिए कि अल्टरनेट चाहिए? मतलब आज हुआ तो कल नहीं चाहिए आपको, बराबर? तो आप मुझे बताओ सिलेबस कैसे कवर होगा भैया? ठीक है, हम क्या करेंगे, वीकेंड में ज्यादा ट्राई करेंगे, चलेगा? यस चलेगा, वीकेंड में ज्यादा ज्यादा जैसे 2 घंटा 3 घंटा। Okay. ओके, तो कल आप कल लेक्चर रखना है कि नहीं रखना? कल रखेंगे ना, क्योंकि हमारा अभी तक प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं हुआ ना। कल रखते हैं और कल से हम अल्टरनेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, और किसी को इश्यू? समझ में तो आ रहा है आपको? थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या? फास्ट हो रहा है तो वो भी बता दो, थोड़ा और मैं स्लो करता हूँ। नहीं सर, सही है सर। ओके चलो बाय फिर। No, sir. यस स्वराजली। No, sir. Okay. So we'll meet tomorrow at 8:45, right? ओके सर। Okay. Bye. Yes, sir. Bye. Yes, sir. Thank you, sir. Have a nice day. Do something.